تو جو ہم نے حوالہ انٹی نے بھی ہمارے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں، پہلے آپ ٹاپک جان لیں کہ آج ٹاپک جس پہ کلام ستانے والا کیا ہے کہ پولس رسول کی غیرت کلیسیا کے لیے، پولس رسول کی کلیسیا کے لیے غیرت اور لوگوں کی بددیانتی. ٹھیک، پولس رسول کی کلیسیا کے لیے غیرت اور لوگوں کی بددیانتی. تو جب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ حوالہ شروع ہوتا ہے میں پولس کہتا ہے کہ کاش کہ تم میری تھوڑی سی بیوقوفی کی برداشت کر سکتے. تو پولس رسول یہاں پہ کہتا ہے کہ کاش تم میری تھوڑی سی بیوقوفی کی برداشت کر سکتے. وہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. سیاق و سباق سے جب ہم پچھلی جو واقعات ہیں ان کو سمجھیں گے پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ پولس رسول یہاں پر بیوقوفی کی بات کیوں کہتا ہے. وہ اپنے بات جو وہ کرنے والا ہے اس کو وہ بیوقوفی سے کیوں تشبیہ دیتا ہے. پیچھے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پولس رسول اپنی خدمت کا دفاع کرتا ہے. کرنتھیوں کی کلیسیا میں کچھ ایسے لوگ آ گئے تھے جو اپنے آپ کو رسول کہتے تھے، جو یہ کہتے تھے کہ ہم سچے ہیں اور ہم سچائی کی تعلیم دے رہے ہیں، اور وہ پولس رسول کی جو تعلیم ہے اس کے بارے میں اور پولس رسول کی شخصیت کے بارے میں کرنتھیوں کی کلیسیا کے دلوں میں مختلف خیالات ڈال رہے تھے، جس کی وجہ سے بہت سے کرنتھیوں کے لوگ جو تھے ان کی باتوں میں آ گئے تھے. تو پولس رسول اس خط کو اس لیے لکھتا ہے تاکہ وہ کرنتھیوں کی کلیسیا کو یاد کروا سکے اپنا کردار، اپنی وفاداری اور اپنی ان کے لیے محبت اور اپنی سچائی کو ان پر ظاہر کر سکے. تو جب ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ پولس رسول نے اپنی خدمت کا دفاع کرنے کے لیے اس خط کو لکھا، تو یہاں پر وہ کہتا ہے کہ کاش کہ تم میری تھوڑی سی بیوقوفی کی برداشت کر سکتے. تو یہاں پر جو وہ کہہ رہا ہے کہ میری تھوڑی سی بیوقوفی جو وہ کہہ رہا ہے، وہ جو پیچھے بات چل رہی ہے اس کو کہہ رہا ہے کہ پولس رسول فخر کرتا ہے کس بات پہ؟ مسیح پہ، خدا پہ، اور مسیح جو کام اس کی زندگی میں کر رہا ہے اور جو اس کے ذریعے سے کر رہا ہے اس پہ وہ فخر کرتا ہے اور اس کے بارے میں ان کو بتاتا ہے. عام طور پہ سمجھا جاتا تھا کہ فخر کرنا جو ہے اس علاقے میں سمجھا جاتا تھا کہ وہ بیوقوفی ہے. تو پولس رسول کہتا ہے کہ عام طور پہ اس کو بیوقوفی تو سمجھا جاتا ہے، پر تم میری برداشت کرو کہ میں جو تمہیں بات بتانے والا ہوں اس کو تم سمجھو. تو وہ کہتا ہے کہ ہاں تم میری برداشت کرو. تو وہ 2 بار برداشت کی بات کر چکا ہے، کیونکہ وہ بار بار سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اتنا بڑا باب ہے، بار بار وہ اپنی خدمت کا دفاع کر رہا ہے. تو پڑھنے والا شاید آپ لوگ بھی بہت حد تک اس طرح ہوتا ہے کہ بار بار جو ایک بندہ ایک ہی بات کر رہا ہے تو اس کی لوگ برداشت نہیں کرتے. بار بار ایک ہی بات کو سن کے لوگ تھک جاتے ہیں اور لوگوں کا انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے. پر پولس رسول نے کہتے ہیں کہ تم میری برداشت کرو، تم میری بات کی برداشت کرو. میں جو تمہیں بتا رہا ہوں بے شک عام طور پہ اس کو بیوقوفی لوگ سمجھتے ہیں، پر تم میری برداشت کرو. اب ہم آگے دیکھتے ہیں، لکھا ہوا ہے مجھے تمہاری بابت خدا کی سی غیرت ہے کیونکہ میں نے ایک ہی شوہر کے ساتھ تمہاری نسبت کی ہے. تو خدا انہیں بتا رہے کہ میری جو غیرت ہے وہ تمہارے لیے خدا کی سی غیرت ہے. غیرت کے لیے انگلش میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ جیلسی ہے. جیلسی جو ہوتی ہے جلنا، ہم کہتے ہیں کہ کوئی مطلب ہم کسی شخص سے جلتے ہیں تو عام طور پہ جو جلن ہوتی ہے وہ منفی معنوں میں لی جاتی ہے. پر پولس رسول یہاں پہ جو غیرت کی بات کر رہا ہے وہ بات کر رہا ہے کہ مجھے خدا کی سی غیرت ہے. خدا کو کس چیز کی غیرت ہے؟ خدا کو اپنے جلال کی غیرت ہے. خدا چاہتا ہے کہ جو جلال اس کا ہے وہ اسی کو ملے. تو پولس رسول بھی خدا کے نام کی غیرت رکھتے ہوئے، خدا کے جلال کی غیرت رکھتے ہوئے وہ ان کے ساتھ بات کر رہا ہے.
تو یہ بات ہے کہ جو لوگ ہوتے ہیں، جو خدا کے لوگ ہوتے ہیں، وہ خدا کی غیرت رکھتے ہیں، وہ خدا کے ساتھ وفادار ہوتے ہیں، دیانتدار ہوتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ لوگ بھی خدا کے ساتھ وفادار اور دیانتدار ہوں۔ یسوع مسیح نے ہمیشہ ہمیں دعائے ربانی سکھائی، تو دعائے ربانی میں یسوع مسیح نے ہمیں کیا بات کہنے کا، پہلی چیز وہ کیا چیز ہے جس کو ہم دعائے ربانی میں مانگنے کے لیے یسوع مسیح نے کہا کہ خدا کا نام پاک مانا جائے، کہ تیرا نام پاک مانا جائے، کہ یسوع مسیح چاہتے تھے کہ یسوع مسیح کے باپ کا نام جو ہے پاک مانا جائے۔ خدا کے لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ خدا کا نام پاک مانا جائے، ان لوگوں نے نجات پائی ہے تو باقی سب لوگ جو ان کے آس پاس ہیں وہ لوگ بھی نجات پائیں۔ تو یہ بات جو ہے بڑی غور طلب ہے کہ پولس رسول کو جو غیرت تھی وہ مسیح کی غیرت تھی کہ مسیح کے نام کو جلال ملنا چاہیے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ خدا نے ایک طریقہ چنا ہے جس کے وسیلہ سے وہ جلال حاصل کرنا چاہتا ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ مسیح کے وسیلے سے جو اس نے خوشخبری دی ہے وہ اس کے وسیلہ سے جلال حاصل کرنا چاہتا ہے، اور خدا نے کوئی طریقہ اس طرح کا نہیں بنایا۔ جب خدا نے یہ طریقہ بنایا ہے تو خدا چاہتا ہے اس طرح سے مجھے جلال دیا جائے، پر جب لوگ جو ہیں غلط تعلیم میں جاتے ہیں تو وہ لوگ خدا کے نام کو جلال نہیں دیتے، تو جب خدا کے نام کو جلال نہیں ملتا تو خدا کو جیلسی ہوتی ہے۔ خدا کی جیلسی، خدا کی جلن وہ بھی پاک ہے، کیونکہ وہ صحیح جلن ہے اور وہ جو ہے راست جو ہے جیلسی، یہ راست غیرت ہے خدا کی۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ میں نے ایک ہی شوہر کے ساتھ تمہاری نسبت کی ہے تاکہ تم کو پاک دامن کنواری کی مانند مسیح کے پاس حاضر کروں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک ہی شوہر سے تمہاری نسبت کی ہے۔ تو انگلش میں لکھا ہوا ہے بیٹروتھ۔ بیٹروتھ کا مطلب یہ ہے کہ جب منگنی ہوتی ہے تو ہم اس کو بیٹروتھل کہتے ہیں، کہ جب منگنی ہوتی تھی یہودیوں میں تو اس طرح ہوتا تھا کہ جو ایک کانٹریکٹ سائن ہوتا تھا، جس میں کانٹریکٹ جب سائن ہوتا تھا تو اس کے سال بعد جو ہے شادی ہوتی تھی، تو اس جب کانٹریکٹ میں منگنی میں جب شادی کا کانٹریکٹ ہو جاتا تھا تو اس ایک سال میں جو تھا، جو خاوند تھا وہ جاتا تھا اور گھر تیار کرتا تھا، اور بیوی کے اوپر یہ لازم تھا کہ وہ اپنے آپ کو پاک رکھے، اپنی پاکیزگی کو ظاہر کرے۔ تو اسی تصویر کو یہاں پہ پولس رسول استعمال کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں کہ مسیح کی دلہن ہے مسیح کی کلیسیا۔ تو جب وہ ایمان لاتے ہیں تو مسیح کی کلیسیا، مسیح کی دلہن کا حصہ ہو جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں ایک ہی شوہر سے نسبت کی تھی، کہ مسیح سے ہی تمہاری نسبت میں نے کی تھی۔ پولس رسول یہاں پر اپنے آپ کو ان کا روحانی باپ کے طور پر ظاہر کرتا ہے، جس طرح لکھا ہوا ہے پہلا کرنتھیوں 4:15، کوئی بھی اونچی آواز میں پڑھ سکتا ہے۔ کیونکہ اگر مسیح میں تمہارے استاد 10,000 بھی ہوتے تو بھی تمہارے باپ بہت سے نہیں، اس لیے کہ میں ہی انجیل کے وسیلہ سے مسیح یسوع میں تمہارا باپ بنا۔ تو وہ کہتے ہیں انجیل کے وسیلہ سے مسیح یسوع میں تمہارا باپ کون بنا؟ میں بنا۔ تو وہ اسی چیز کے بارے میں بات کر رہا ہے کہ یسوع مسیح نے کہا تھا کہ میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے مکان جگہ تیار کرتا ہوں، کہ جگہ تیار کرنے کے لیے یسوع مسیح گئے ہیں۔ یسوع مسیح کی کلیسیا اس جگہ میں موجود ہے جس کو دلہن سے تشبیہ دی گئی ہے۔ افسیوں 5 اس کی 25 آیت ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اے شوہروں، اپنی بیویوں سے محبت رکھو جیسے مسیح نے بھی کلیسیا سے محبت کر کے اپنے آپ کو اس کے واسطے موت کے حوالہ کر دیا۔ تو
اسی طرح کی جو امیجری ہے، جو شادی کی جو تصویر ہے، اسی سے مسیح کا، مسیح کی کلیسیا کے ساتھ جو رشتہ ہے اس کو ظاہر کیا گیا ہے کلام مقدس میں۔ تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خدا پرانے عہد نامے میں جو ہے، جو یہودی لوگ تھے، جو اس کے لوگ تھے، ان کو اپنی بیوی سے تشبیہ دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ یسایہ 54 اس کی 5 ہے، کوئی اونچی آواز میں پڑھ سکتا ہے۔ کیونکہ تیرا خالق تیرا شوہر ہے، اس کا نام رب الفاج ہے، اور تیرا فدیہ دینے والا اسرائیل کا قدوس ہے، وہ تمام روئے زمین کا خدا کہلائے گا۔ جی، تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ تیرا شوہر رب الفاج ہے۔ خدا اپنے آپ کو اسرائیل کا شوہر ظاہر کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ وہ ان کو مطلب اس طرح جب وہ پرانے عہد نامے میں کہتا ہے خدا جو ہے ان کو، تو نئے عہد نامے میں اپنی کلیسیا کو مسیح جو ہے اپنی دلہن سے تشبیہ دیتا ہے۔ اور پولس رسول کہتا ہے کہ میں نے تمہاری نسبت جو ہے مسیح کے ساتھ کی، کہ مسیح کے ساتھ تمہاری کلیسیا کی منگنی کروائی تھی، تاکہ آخر میں جو ہے برا کی شادی میں ہم شامل ہو سکیں۔ منگنی ہوگی، جگہ تیار کرنے کے لیے مسیح گیا ہے، اب کلیسیا کے اوپر کیا لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو پاک دامن رکھے، اور تاکہ مسیح کے پاس حاضر ہو۔ ٹھیک، پاک دامن اپنے آپ کو، کلیسیا کو رکھنا ہے۔ مسیح گیا ہے جگہ تیار کرنے کے لیے۔ مکاشفہ 19 باب اس کی 7 آئی۔ آؤ ہم خوشی کریں اور نہایت شادمان ہوں اور اس کی تمجید کریں، اس لیے کہ برا کی شادی آ پہنچی اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو تیار کر لیا۔ تو بولتے ہیں کہ برا کی شادی آ پہنچی۔ آخر میں مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ برا کی شادی جو ہے آ پہنچی ہے اور اس کی بیوی تیار ہے۔ تو اس کی بیوی کی تیاری میں جو مدد ہے وہ پولس رسول کر رہا ہے خدا کے دیے ہوئے اختیار کے بلبوتے پر۔ اب ہم آگے دیکھ سکتے ہیں کہ لکھا ہوا ہے، لیکن میں ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح سانپ نے اپنی مکاری سے ہوا کو بہکایا، اسی طرح تمہارے خیالات بھی اس خلوص اور پاک دامنی سے ہٹ جائیں۔ تو یہاں پہ وہ بات کرتا ہے کہ پولس رسول کا ڈر یہ تھا کہ جس طرح سے سانپ نے ہوا کو بہکایا، اس طرح سے جو ہے ان کا جو دھیان ہے، ان کی جو سوچیں، ان کے خیالات جو ہیں وہ خداوند کی سچی خوشخبری سے اور مسیح سے نہ ہٹتے ہیں۔ ہم دیکھ سکتے ہیں پیدائش 3 باب اس کی پہلی 6 آیات۔ پیدائش 3 باب اس کی پہلی 6 آیات خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے، اور سانپ کل دشتی جانوروں سے جن کو خداوند خدا نے بنایا تھا چالاک تھا، اور اس نے عورت سے کہا، کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا؟ عورت نے سانپ سے کہا کہ باغ کے درختوں کا پھل تو ہم کھاتے ہیں، جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس کے پھل کی بابت خدا نے کہا ہے کہ تم نہ تو اسے کھانا اور نہ چھونا، اور ورنہ مر جاؤ گے۔ تب سانپ نے عورت سے کہا کہ تم ہرگز نہ مرو گے، بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ۔ عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے
खूब है तो उसके फल में से लिया और खाया और अपने शोहर को भी दिया और उसने खाया। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हवाला हमारे सामने है और साफ बात चल रही है। सांप चालाक था, उसने औरत के साथ बात की। देखने वाली बात यह है कि उसने क्या बात की कि किसी दरख्त का फल तुमने नहीं खाना। खुदा ने ये नहीं कहा था, खुदा ने कहा था कि तुमने उस नेक व बद की पहचान के दरख्त का फल नहीं खाना। खुदा ने उस दरख्त के फल को खाने से मना किया था उन्हें, पर शैतान ने आके क्या की, खुदा के कलाम को तोड़ा मरोड़ा। उसने उसमें तरमीम की, खुदा की बात में तरमीम की कि किसी फल को नहीं खाना। नहीं खाना था, हाँ नहीं खाना था। क्या नहीं खाना था? उस एक दरख्त के फल को नहीं खाना था, पर उनके ज़हन में यह बात आ गई कि किसी दरख्त के फल को उसने उसमें डाउट डाल दिया। डाउट मानी कि उसके दिल में उसने शक डाला खुदा की बात को लेके, खुदा के किरदार को लेके उसने शक डाला कि खुदा शायद नहीं चाहता कि वो खुदा जैसे बन जाए। खुदा के कलाम में तरमीम की, खुदा की शख्सियत के बारे में शक डाला, फिर फल खाया। अब जब हम देखते हैं इसी बात को कि शैतान ने किस तरह से उनकी ज़िंदगी में काम किया, तो शैतान के जो लोग होते हैं, जो झूठे कलाम सुनाने वाले, झूठी खुशखबरी सुनाने वाले लोग होते हैं, वो लोग भी इसी तरह से करते हैं। वो लोग भी इसी तरह से करते हैं, जो कि हम आगे देखेंगे कि वो खुदा की कलीसिया की पाक दामनी को ख़त्म करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि लोग जो है, जिस तरह से पुराने अहदनामे में रूहानी ज़राकारी को किससे तशबीह दी गई थी कि दूसरे खुदाओं के पीछे जाना से तशबीह दी गई थी। जब इसराइल का खुदा जो यहोवा खुदा था, उससे लोग मुड़ जाते थे तो उसको रूहानी ज़राकारी से तशबीह दी गई थी। उसी बात को यहाँ पे पौलुस रसूल भी कहता है कि तुम जो हो पाक दामनी से हट जाएं जो मसीह के साथ होनी चाहिए, कि वो उस पाक दामनी से मसीह की तरफ जो उनको होनी चाहिए उससे बोलो हट जाए। और इन लोगों ने क्या बात की, क्योंकि जो आता है अगर वो किसी दूसरे यस्सु की मुनादी करता है जिसकी तुमने मुनादी नहीं की, या कोई और रूह तुमको मिलती है जो ना मिली थी, या दूसरी खुशखबरी मिली जिसको तुमने कबूल ना किया था, तो तुम्हारा बर्दाश्त करना बचा है। तो ये बात है कि खुदा की शख्सियत के बारे में शक डाला, खुदा के कलाम के बारे में शैतान ने शक डाला। ये लोग भी इसी तरह कर रहे थे। पहली बात क्या करते हैं कि वो मसीह जिसकी खुशखबरी तुमने मसीह के बारे में नहीं सुना, वो रूह जो तुम्हें मिला नहीं। और तीसरी बात क्या है कि वो खुशखबरी जिस पर तुम ईमान नहीं लाए, मतलब पौलुस रसूल जो मसीह के बारे में बता चुका, मसीह के काम के बारे में जो उन्हें बता चुका, उसको छोड़ के किसी और तरफ लग जाना। शैतान ने भी इसी तरह किया, खुदा और खुदा के कलाम के बारे में शक डाला। ये लोग भी मसीह और मसीह के काम के बारे में उनके जहन में शक डाल रहे थे। तो शैतान और शैतान के जो झूठी खुशखबरी सुनाने वाले हैं, वैसे नहीं आएंगे आपके पास कि बस जी आपके पास आएंगे और बोलेंगे कोई खुदा नहीं है, खुदा को छोड़ दो, खुदा के पीछे तुमने नहीं जाना। वो आएंगे, वो आपको कुछ सच्ची बात सुनाएंगे, कुछ जो है झूठी बात सुनाएंगे, और मिल के आपको कोई ऐसी बात बता देंगे कि आप बोलेंगे ये तो खुदा का नाम लेके सच्ची बात ही करता है। तो ये बात जानने की है कि खुदा के किरदार के बारे में शैतान ने शक डाला। ये जो झूठे कलाम सुनाने वाले थे, ये भी उनके दिनों में शक डाल रहे थे। पर जानने की बात यह कि हमें नहीं पता कि ये कौन सी झूठी तालीम सुना रहे थे,
कौन सी जो झूठी बात कर रहे थे यसुम मसीह की शख्सियत के बारे में, या फिर कौन सी खुशखबरी सुना रहे थे। ये आपको पूरे किताब में नहीं मिलेगा, बाब में भी नहीं मिलेगा, पूरी किताब में भी नहीं मिलेगा ये बात कि वो कौन सी खुशखबरी की मुनादी कर रहे थे। पर हमें यह पता है कि वो किसी और मसीह की मुनादी कर रहे थे और किसी और खुशखबरी की बात कर रहे थे, जिसकी वजह से वो करंथियों की कलीसिया जो थी उसको बहका रहे थे। तो आमतौर पे यही बात है कि लोग समझते हैं कि जी वो भी खुदा का नाम ही लेते हैं। कोई भी कहते हैं वो भी तो खुदा का नाम ही लाते रहे, ये भी कहते हैं वो भी तो खुदा का नाम ही लाते रहे। ये बात जो है, मतलब खुदा का नाम तो शैतान ने भी लेके बात की ना इनके साथ, आदम और हवा के साथ। इस तरह आप किसी भी चर्च में जाएं, खुदा का नाम लेकर ही वो आपके साथ बात करेंगे, पर लाजम आप पर है कि आपने देखना है क्या वो खुदा के कलाम खुशखबरी सच्चाई से सुना रहे हैं, क्या वो झूठे खुदा के बारे में आपको बता रहे हैं या फिर आपको सच्चे खुदा के बारे में बता रहे हैं। मॉर्मन्स भी आएंगे, मॉर्मन्स भी आपको खुदा का नाम लेकर बात करेंगे। पौलुस रसूल यहाँ पे कहते हैं किसी और मसीह, दूसरे मसीह की मुनादी, जिसकी मुनादी हमने नहीं की थी, वो भी आपको आएंगे बताएंगे जी हम भी मसीह को मानते हैं। आप बोले मसीह को मानते हैं? बोलते हैं हाँ हम भी मसीह को मानते हैं। अब जब आप उनसे पूछेंगे कि मसीह कौन है, तो फिर वो आपको बताएंगे कि पहले तो वो मानते हैं कि खुदा था नहीं, फिर उसने अच्छे काम किए तो वो खुदा बन गया। मसीह भी जो है खुदा की बनाई मखलूक में से, और फिर आप भी जो है खुदा बन जाएंगे एक टाइम पे, मरेंगे तो मरने के बाद आपको भी अपना प्लैनेट मिल जाएगा। तो यसुम मसीह खुदा के बारे में इनके इस किस्म के ख्यालात हैं। आपको वो कहेंगे तो सही हम मसीह को मानते हैं, किसी खुदा को मानते हैं, पर अब आप बात करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा। फिर आप जब जाएंगे जो विटनेस वाले घरों में आते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं, बाहर जाके उनसे मिलेंगे तो अंदर आएंगे, फिर आप उनके साथ बातचीत शुरू करेंगे, तो फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा कि वो बोलेंगे जी हम खुदा को मानते हैं, हम यहोवा के गवाह हैं। पर यसुम मसीह जो है वो बनाई मखलूक है, वो खुदा नहीं है। तो ये सब बातें जो है आपको उनके साथ बातचीत करने में मिलेंगी। तो मुख्तलिफ वसवसे लोगों से लोगों को फंसाते हैं, मुख्तलिफ बातें करते हैं। अब मार्टिन लूथर ने जब रोमन कैथलिक कलीसिया के साथ जो है जुदाई की, तो उसके तकरीबन 30 साल बाद जब उसने अपने थीसिस जो उसने लिखे थे रोमन कैथलिक चर्च के खिलाफ, जो उसने थीसिस लिखे थे, जो उसने गलत बातें उनमें जो थी वो उनको पॉइंट आउट किया और उन्हें सच्चाई बताई थी, उसके 30 साल बाद जब वो जर्मनी में गया तो जर्मनी में लोग मुख्तलिफ चीज़ों को मानने लग गए थे। कुछ लोग जो है वापस बुतों की तरफ चलने लग गए थे, बुतों को मानने लग गए थे, मतलब जो स्टैचूज बनाते हैं उनके सामने जो है वो सजदे करने लग गए, उनको मानने लग गए। और एक चीज़ है उसको कहते हैं यूसुफ की शलवार, यूसुफ की पैंट्स, उसको भी लोग जो है बड़ा जो है बहुत वो करते थे जी कि ये यूसुफ की पैंट है तो इसकी बड़ी अहमियत है। तो उस वक्त में ऐसी भी बात पाई जाती थी, हिस्ट्री में दर्ज है कि ये ख़ास चीज़ें हैं, पाक चीज़ें हैं, इनको पास रखने से हो जाता है, इस मूर्ति या सजदा करेंगे तो होगा काम आपका, दुआ करेंगे तो इस तरह से आपकी सब कुछ हो जाएगा। रेलिक्स को मानने लग गए थे। तो वो उन्हें आके बोलता है कि तुम बेवकूफ़ हो, जब खुदा की खुशखबरी जो अंधेरे में थी तुम पर रोशन की गई तो तुम फिर भी उससे मुड़ गए। तो सोचने की बात यह है, सिर्फ 30 साल में ही वो लोग खुदा की खुशखबरी से फिर गए, वो लोग मुड़ गए। और इनको भी जो करंथियों की कलीसिया जो थी, इनको भी बहुत कोई टाइम नहीं लगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा खुदा की खुशखबरी से मुड़ने में। तो एक जर्मन थियोलॉजियन था, उसका नाम था रुडोल्फ बुल्टमान। तो रुडोल्फ बुल्टमान कहता है जी कि ये जो बाइबल है ये इसमें बेशक कुछ तारीखी जो है सच्चाइयाँ पाई जाती हैं, पर इसमें अफसानवी कहानियाँ भी पाई जाती हैं। अफसाने पाए जाते हैं, अफसाने से मतलब मन गढ़ंत अपनी से बनाई हुई कहानियाँ
पाई जाती हैं। तो अगर आपको बाइबल को समझना है तो आपको बुल्टमान का जो है कोर्स पहले करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको बाइबल की समझ आएगी। तो वो कहते हैं कि बाइबल में वो यीशु मसीह के मौजज़ों के बारे में बात करता है कि यीशु मसीह के मौजज़ों में आपको एक पैटर्न मिलता है। मौजज़ों में आपको एक पैटर्न मिलता है कि मौजज़े होते हैं, उसके बाद सारे लोग हैरान हो जाते हैं। लोग मौजज़े होते हैं, लोग हैरान हो जाते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि ये सच्ची कहानियाँ नहीं हैं, बल्कि लोगों की मन गढ़ंत बनाई अपने से कहानियाँ। पहले ये लोग आपस में सुनाते थे अल्फाज से, फिर उसके बाद उन लोगों ने लिख दी। तो इस तरह से आप जो है यीशु मसीह के मौजज़ों को भी समझ सकते हैं। पर यह बात है कि अगर कोई भी मौजज़ा होता है, अगर हम इसी बात को ले लें, उसके ऑब्जेक्शन को ले लें, तो ये बात समझने की है कि अगर कोई मौजज़ा होता है तो क्या वो हैरान नहीं करेगा लोगों को? अगर एक मुर्दा जो है वो जिंदा हो जाए, 4 दिन का मुर्दा, क्या वो लोगों को हैरान नहीं करेगा? क्या एक जन्म का अंधा जो है जब वो ठीक हो जाएगा, क्या वो लोगों को हैरान नहीं करेगा? सिंपल सी बात यह है, कॉमन सेंस ये कहती है कि अगर कोई ऐसी बात होगी तो जरूर हम हैरान होंगे, जरूर हम हैरान होंगे। तो जब हम बाइबल की तरफ आते हैं और हम देखते हैं 7 कलीसियाओं का जिक्र हमें मिलता है, मुकाशफा में 7 कलीसियाओं का हमें जिक्र मिलता है, जिनमें से 5 जो हैं वो झूठी तालीम के पीछे चलने लग गए। 7 का जिक्र मिलता है, 5 जो है झूठी तालीम की तरफ चलने लग गई थी। कहने का मकसद यह है कि जब थोड़े से अरसे में लोग थोड़े से अरसे में खुशखबरी को, मसीह के काम को भूल जाते हैं। ऐसे तो नहीं कहता मार्टिन लूथर के खुशखबरी हमें अपने आप को हर रोज याद करवाने की जरूरत है, क्योंकि हम उसे हर रोज भूल जाते हैं। तो इतने से अरसे में खुदा की खुशखबरी को लोग भूल रहे थे, और फिर हम देखते हैं कि खुशखबरी को लोग मोड़ते हैं, मसीह की शख्सियत के बारे में लोग बात करते हैं, मसीह की शख्सियत को मोड़ते हैं। अब मसीह की शख्सियत के बारे में लोग बात करते हैं कि मसीह को लोग खुदा नहीं मानते, खुदा का बेटा नहीं मानते, ये हमने बात की। दूसरी हम बात करते हैं खुशखबरी के बारे में। कभी कभार खुशखबरी की जो है शक्ल जो लोग मोड़ते हैं, वो लोग जो है आपको खुशखबरी सुनाएंगे, पर खुशखबरी में कुछ ऐड भी कर देंगे, खुशखबरी में कुछ ऐड भी कर देंगे। इसी चीज़ को हम देख सकते हैं गलतियों 1 बाब उसकी 6 से 9 आयत में। मैं ताज्जुब करता हूँ कि जिसने तुम्हें मसीह के फजल से बुलाया, उससे तुम इस कदर जल्द फिर कर किसी और तरह की खुशखबरी की तरफ मायल होने लगे। मगर वो दूसरी नहीं, अलबत्ता बाज़ ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और मसीह की खुशखबरी को बिगाड़ना चाहते हैं। लेकिन अगर हम या आसमान का कोई फरिश्ता भी उस खुशखबरी के सिवा जो हमने तुम्हें सुनाई कोई और खुशखबरी तुम्हें सुनाए तो मलाउन हो। जैसा हम पेशतर कह चुके हैं, वैसा ही अब मैं फिर कहता हूँ कि उस खुशखबरी के सिवा जो तुमने कबूल की थी, अगर कोई तुम्हें और खुशखबरी सुनाता है तो मलाउन हो। अब मैं आदमियों को दोस्त बनाता हूँ। काफ़ी तो गलतियों 1 बाब 6 से 9 देखा गया। तो इसमें वो कहता है कि मैं तुमसे हैरान हूँ कि तुम खुशखबरी से कितनी जल्दी मुड़ गए, कि वो लोग जो है खुशखबरी से वो लोग जो है फिर गए थे। और पौलुस रसूल जो है अपनी हैरानगी को जाहिर करता है, ताज्जुब करता है उनके कितनी जल्दी वो लोग जो है खुशखबरी से मुड़ गए थे। फिर पौलुस रसूल क्या कहता है कि अगर हम या कोई आसमान का फरिश्ता भी वो खुशखबरी जो हमने तुम्हें सुनाई है उसके अलावा कोई खुशखबरी सुनाता है तो तुमने उसकी नहीं माननी, और जो शख्स जो खुशखबरी हमने सुनाई उसके अलावा कोई और खुशखबरी सुनाता है तो वो मलाउन हो। मलाउन का मतलब है लानती। लानती का जो यहाँ पे लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है अनाथमा, उसका मतलब यह है कि वो शख्स जो है
जहन्नम की तरफ माइल है, वो शख्स जो है जहन्नम की तरफ जा रहा है। अब गलतियों में क्या बात थी? गलतियों में यह बात थी कि गलतियों की कलीसिया में पौलुस रसूल ने खुशखबरी सुनाई कि ईमान ही से निजात है। अब वहां पर यह बात भी आ गई कि सिर्फ ईमान से निजात नहीं है बल्कि खतने से भी निजात है। तो हम देख सकते हैं कि खुशखबरी के बारे में जो है हमारे दिलों में जो शक है और खुशखबरी को जो तोड़ते मरोड़ते लोग हैं उनके बारे में पौलुस रसूल क्या बात करते हैं कि वो लोग जो हैं और वो लोग जो इस खुशखबरी को, बाइबल की खुशखबरी को नहीं मानते, वो लोग जहन्नम की तरफ जा रहे हैं। तो कितनी डरने की बात है कि पौलुस रसूल ने उन्हें मलाउन कहा है। हमारे ऊपर भी ये फ़र्ज है कि हम जो है कुछ इन करंथियों के लोगों की तरह जो लोग झूठी खुशखबरी को मानने लग गए थे, झूठे मसीह को मानने लग गए थे, उनकी तरह ना बने। तो पौलुस रसूल कहता है कि तुम्हारा बर्दाश्त करना बजाय, इंग्लिश में लिखा हुआ है यू इजीली पुट अप विद इट, कि तुम आसानी से मान लेते हो, कि आसानी से तुम्हें कोई भी आके किसी भी मसीह के बारे में बताता है, किसी भी खुशखबरी के बारे में बताता है, तुम उसकी बात को आसानी से मान लेते हो। और पौलुस रसूल जो है इसी वजह से अपनी जो है पोस्ट अपने फूलता है अपने बारे में, सच्चाई के बारे में बताता है, उनको बताता है कि मसीह ने मेरे ज़रिए से क्या काम किया, क्योंकि मसीह को जो है खुदा की सी गैरत उन लोगों के लिए है। समझने की बात, खुदा के लिए खुदा की खुशखबरी अहम है। खुदा के लिए खुदा की खुशखबरी अहम है। इतनी अहम है मसीह ने अपनी जान दी है। इससे बढ़ के क्या हो सकता है? जब खुदा के लिए खुदा की खुशखबरी इतनी अहम है तो हमारे लिए कितनी अहम होनी चाहिए। पौलुस रसूल के लिए ये अहम थी। ऐसी तो नहीं वो खतूत पे खतूत लिखता, ऐसी तो नहीं वो खुदा की खुशखबरी बार बार उन्हें बताता, मसीह के बारे में, मसीह के काम के बारे में बार बार उन लोगों को बताता है, क्योंकि मसीह के लिए ये चीज़ बहुत अहम थी, खुदा के लिए अहम है और हमारे लिए भी ये ज़रूर अहम होनी चाहिए। और एक बात हमारे लिए इस वजह से भी अहम होनी चाहिए क्योंकि इस सवाल पे कि खुशखबरी क्या है, मसीह कौन है, इस पे हमारी अब्दियत का दारोमदार है। जिंदगी में आपसे बहुत से सवाल लोगों ने किए होंगे, बहुत से सवालों के जवाब आपको पता होंगे, बहुत से सवालों के जवाब नहीं पता होंगे, पर एक सवाल का जवाब जो है जिंदगी में आपके सबसे जरूरी है, वो है कि मसीह कौन और मसीह खुशखबरी क्या है। ये आपकी जिंदगी के सबसे अहम सवालों में से सबसे अहम। और अगर आप इस सवाल को गलत अपनी जिंदगी में करते हैं और इसका जवाब गलत देते हैं और उस गलत को मानते हैं तो जरूर है, पौलुस रसूल ने कहा था कि जो खुशखबरी हमने तुम्हें सुनाई है उसके अलावा कोई खुशखबरी सुनाए तो वो मलाउन हो, वो जहन्नम की तरफ जा रहा है। हम भी जहन्नम की तरफ जाएंगे और मरेंगे अगर हम खुदा की खुशखबरी को सही से नहीं मानते, सच्ची खुशखबरी पर हमारा ईमान नहीं है, सच्चे मसीह पर हमारा ईमान नहीं। खुदा ने एक रास्ता चुना है हमेशा की ज़िंदगी का, वो सच्चे मसीह और उसकी खुशखबरी से है, और उसके अलावा खुदा किसी को भी अपने पास नहीं आने। इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। हमारे ऊपर लाजम है कि हम इस सवाल का जवाब और इस रास्ते को और उस दरवाजे को जो मसीह है सही तरह से जाने कि मसीह कौन है और मसीह काम को जाने। तो जब हम खुशखबरी के बारे में बात कर रहे हैं, मसीह के काम के बारे में बात कर रहे हैं, तो समझने की ज़रूरत यह है कि खुशखबरी क्या है और मसीह कौन है। हम देख सकते हैं यूहन्ना की इंजील उसकी पहली 3 आयत, पहला बाब उसकी पहली 3 आयत हम देखेंगे।
ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں اور جو کچھ پیدا ہوا اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں۔ تو ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ یہ کلام جو ہے یہی یسوع مسیح، ٹھیک، آگے باب میں بتایا جاتا ہے کہ یہ جو کلام تھا یہ مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، 14ویں آیت ہے، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام ہی خدا تھا۔ کلام کون ہے؟ یسوع مسیح ہے۔ کیوں ہمیں پتہ ہے؟ کیونکہ 14ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ وہ کلام جو ہے مجسم ہوا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال، کہ باپ کا اکلوتا جو ہے وہ یسوع مسیح ہے، وہ اسی کو کلام یہاں پہ کہا گیا ہے۔ تو یسوع مسیح کون ہے؟ یسوع مسیح باپ کا اکلوتا ہے، اکلوتا بیٹا ہے، اور کون ہے؟ خدا ہے۔ ہماری ابدیت اسی سوال پہ جھول رہی ہے کہ مسیح کون ہے۔ اگر ہم اس سوال کا جواب صحیح نہیں دیتے تو ضرور ہے کہ ہم جہنم میں جائیں گے اور اپنے گناہ میں مریں گے، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا کہ اگر تم ایمان نہ لاؤ کہ میں وہ ہوں تو تم ضرور اپنے گناہ میں مرو گے۔ یوحنا کی انجیل میں لکھا ہوا۔ آگے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مسیح کی خوشخبری کیا ہے۔ پہلا کرنتھیوں 5 باب اس کی 4 آیات، پہلی 4 آیات، پہلا کرنتھیوں 15 باب اس کی پہلی 4 آیات، پہلا کرنتھیوں 15 باب اس کی پہلی 4 آیات ہم دیکھیں گے۔ اب ہے بھائیو، میں تمہیں وہی خوشخبری جتائے دیتا ہوں جو پہلے دے چکا ہوں، جسے تم نے قبول بھی کر لیا تھا اور جس پر قائم بھی ہو۔ اسی کے وسیلہ سے تم کو نجات بھی ملتی ہے، بشرطے کہ وہ خوشخبری جو میں نے تمہیں دی تھی یاد رکھتے ہو، ورنہ تمہارا ایمان لانا بے فائدہ ہوا۔ چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا اور دفن ہوا اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا۔ کہ وہ کہتا ہے کہ میں وہی خوشخبری تمہیں جتائے دیتا ہوں جو پہلے دے چکا ہوں۔ اب آگے وہ بول رہے ہیں کہ میں تمہیں خوشخبری جتا رہا ہوں جو میں تمہیں پہلے دے چکا ہوں۔ وہ خوشخبری کیا ہے؟ کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق مصلوب ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، دفن ہو کر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ سمجھنے کی بات، مسیح کو ہم نے جانا ہے کہ مسیح کون ہے۔ مسیح خوشخبری کیا ہے؟ کہ مسیح نے گناہگاروں کے گناہ کے لیے جان دی ہے اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ ہم جب اس خوشخبری پر ایمان لاتے ہیں تو ہم نجات پاتے ہیں۔ صرف مسیح کے کفارے کی بنا پر ہی نجات ہے، مسیح کے کام کے وسیلہ سے ہی نجات ہے، اور خدا نے کوئی اور نجات کا کام جو ہے اس کے علاوہ نہیں کیا۔ ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اس خوشخبری کو مانیں تاکہ ہم روحانی زناکاری سے بچیں۔ جس طرح سے وہ لوگ جو تھے، یہودی جو تھے، دوسرے خداؤں کے پیچھے جاتے تھے، ہم ان جیسے نہ ہوں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کوئی آپ کو آ کر یہ نہیں بولے گا کہ آپ نے ایک بت کے آگے سجدہ کرنا۔ شاید ہی ہے کبھی آپ کو کوئی بولے کہ آپ نے ایک بت کے سامنے سجدہ کرنے۔ وہ آپ کو مسیح ایسا بتا دے گا جو سچا نہیں ہے، جو ذہنی طور پہ بنایا ہوا ہے، ذہنی خیالوں کا بنایا ہوا مسیح ہے۔ مثال کے طور پہ آپ سوچیں کہ میں آپ کو بولوں کہ خرم بھائی ہیں، خرم بھائی ایک گورے چھوٹے سے قد کے امریکن بندے ہیں جو نیو یارک میں رہتے ہیں، تو کیا آپ مان لیں گے؟ اور سمجھ لیں وہ درزی کام کرتے ہیں، ٹھیک، آپ مان لیں گے؟ نہیں مان لیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ خرم
कैसा है, खुरम कौन है। अब यही बात है कि आप फिर बोलें जी हाँ हम तो उस खुरम को मानते हैं, इस यहाँ वाले खुरम को नहीं मानते। तो इसका मतलब यह कि आपने एक ख्यालाती अपने जहन का बनाया हुआ शख्स है उसको मान लिया। इसी तरह जो लोग मसीह के बारे में गलत पैगाम सुनाते हैं, गलत खुशखबरी सुनाते हैं, गलत मसीह के बारे में बताते हैं, वो आपको अपनी सोच का बनाया हुआ कोई मसीह बताएंगे, नाम वो मसीह का ही लेंगे पर शख्सियत पीछे कोई और होगी। आपके ऊपर लाजम है कि आप जो है देखें। हम देख सकते हैं 1 यूहन्ना 4 बाब उसकी एक है। जो हर एक रूह का यकीन ना करो बल्कि रूहों को आजमाओ कि वो खुदा की तरफ से है या नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे नबी दुनिया में निकल खड़े हुए हैं। तो यहाँ पर हमें यूहन्ना जो है वो इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि हमें क्या करना है, हमें रूहों को आजमाना है। हर कोई जो हमारे पास खुदा और मसीह का नाम लेकर आता है, हमने उसकी बात नहीं माननी बल्कि हमने रूहों को आजमाना है। पर यह बात है कि जब हम जानेंगे हम सच्चा मसीह कौन है, उसकी सच्ची खुशखबरी क्या है, तब भी हम रूह को भी आजमा सकते हैं। जब खुशखबरी को ही नहीं हम मानते, सच्ची खुशखबरी को ही नहीं हम मानते, सच्चे मसीह को ही नहीं हम मानते, पता ही नहीं हमें, तो फिर हमने क्या किसी भी रूह को आजमाना है। फिर तो टीवी पे भी सुनेंगे, हर जगह पे सुनेंगे, बस जी वो भी मसीह ही ना लेंदे नहीं, किसी भी चर्च जावांगे करनी थी उत्थे दुआ ही है। पर हमने ये नहीं करना, क्योंकि चर्च में हम आते हैं, हम अपनी रूहानी तरक्की के लिए आते हैं, मसीह के बारे में जानने के लिए आते हैं, और अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े सवालात जिनका हमने जवाब देना है उनके लिए आते हैं कि मसीह कौन है और मसीह की खुशखबरी क्या है। और आखिर में भी इसी सवाल की बिना पर हमसे पूछा जाएगा। तो करंथियों के जो लोग थे उनकी खासियत क्या थी कि वो आसानी से मान लेते थे लोगों की बातें। क्या हम भी लोगों की बातों को आसानी से मान लेते हैं? हमें जानने की ज़रूरत ये है कि एक ही मसीह है, एक ही खुशखबरी है, एक ही कलीसिया का शोहर है जिसके साथ पलूस रसूल ने कलीसिया की मंगनी करवाई थी। हमारे ऊपर लाजिम है कि उस एक मसीह को जाने, उसकी खुशखबरी को जाने और उसकी हिफाजत करें। पलूस रसूल की ज़िंदगी से प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए हम यह देख सकते हैं कि पलूस रसूल की ज़िंदगी से हम एक गैरत को देख सकते हैं खुदा के जलाल के लिए, खुदा की खुशखबरी के लिए। हमें अपनी ज़िंदगी में गौर करने की ज़रूरत है कि हमें कितनी गैरत है खुदा के नाम की और खुदा के कलाम की। क्या हम पलूस रसूल की तरह कोशिश कर रहे हैं खुदा के कलाम की मुनादी की, खुदा के कलाम को लोगों को सच्चाई से बताने की? अगर हम में खुदा के कलाम की गैरत नहीं है तो अपनी ज़िंदगी पे गौर करने की हमें ज़रूरत है। क्योंकि पलूस रसूल को गैरत थी तो उसके लिए काम करता था। अगर आप बोलें कि मुझे गैरत है खुदा के नाम की, मैं चाहता हूँ कि मसीह के नाम को जलाल मिले, और आप उसके लिए काम नहीं करते, नहीं खुदा खुशखबरी सुनाते, नहीं लोगों को सच्चाई के बारे में बताते, नहीं सच्चाई की हिफाजत करने की कोशिश करते, तो जान ले कि आपको मसीह के नाम की कोई भी गैरत नहीं है। मिसाल के तौर पे आपको भूख लगती है, जाते हैं खाना खाते हैं, प्यास लगती है, जाते हैं पानी पीते हैं, ख्वाहिश है कर लेते हैं। क्या मसीह के नाम की आपको गैरत है? क्या आपके अंदर ख्वाहिश है कि मसीह के नाम को जलाल मिले? क्या आप दुआ रबानी में आते जाते हर इतवार को, घर में भी पढ़ते ही होंगे दुआ रबानी, दुआ करते हैं, आखिर में पढ़ ही लेते हैं खुदा का नाम पाक माना जाए? क्या ये आपके लिए लफ्जी बात है कि बस खुदा के नाम को पाक माना जाए?
या फिर आप देखना चाहते हैं कि खुदा का नाम जो है आपके घर में, आपकी कलीसिया में, बाहर कलीसियाओं में, बाहर राह चलते हर जगह पे पाक माना जाए, और खुदा ने जो तरीका अपने नाम को जलाल देने के लिए चुना है, हम उस तरीके को लोगों को बताएं और हम चाहें कि उससे खुदा के नाम को जलाल मिले। हमारी बड़ी ख्वाहिश क्या है? या फिर हम भी बाकी जिस तरह सब हैं, हम भी उन्हीं की तरह ही हैं। बाइबल कहती है हमें मसीह जैसा किरदार रखना। मसीह को गैरत थी अपने बाप की नाम की, तो उसने कोड़ा बनाया और लोगों को भगा दिया। हम मसीह नहीं हैं, ठीक? हम खुदा के बेटे जिस तरह से मसीह है उस तरह से नहीं है। हम खुदा नहीं हैं तो हम कोड़ा बनाकर नए लोगों को भगा सकते, पहली बात। पर हम क्या कर सकते हैं? हम खुदा की खुशखबरी सच्चाई से सुना सकते हैं, खुदा की खुशखबरी का दिफा कर सकते हैं, अगर हमें खुदा के नाम की गैरत है। और खुदा की खुशखबरी की कौन हिफाजत कर सकता है? जिसको खुदा की खुशखबरी का पता ही नहीं। क्या वो कर सकता है शख्स? हरगिज़ नहीं कर सकता। जिसको मसीह का पता नहीं है वो मसीह की क्या दिफा, मसीह के नाम का क्या दिफा करेगा? जिसके अंदर ख्वाहिश नहीं है बड़ी मसीह के नाम को जलाल देने की, वो क्या मसीह के खुशखबरी बिगड़ी हो उसको दिफा करेगा? आखिर में जॉन कैल्विन कहता है कुत्ता भौंकता है जब उसके मालिक के ऊपर कोई हमला करता है। वो बोलता है अगर कोई मेरे खुदा के कलाम की सच्चाई के ऊपर कोई हमला कर रहा है तो मैं कैसे चुप बैठ सकता? कुत्ता वफादार होता है, हम तो इंसान हैं। क्या हम उससे ज्यादा अपने खुदा के वफादार हैं? सोचने की जरूरत है अपनी जिंदगी पे, अपनी वफादारी पे, अपनी गैरत पे सोचने की जरूरत है कि हमारी गैरत काम करे। हमें खुदा के नाम की गैरत रखनी है और खुदा के कलाम की सच्चाई को जानना है। खुदा इस नाम के वसीला से आपको बरकत। मेरी दरख्वास्त है भाई नीयत से कि दुआ में रहनुमाई करें। हमारी बात हम शुक्रगुजार हैं